an effort to make it jargonless and uh, uh, without the burden of a language, just to make it experiential. Whether you call it a geosite, geopark, or ecotrek, or whatever you may call it, but the idea is that the natural wealth of the country should be enjoyed and it should ultimately lead to an affluent nation. Geoparks are categorized and certified by UNESCO may take a long time to come because of so many conditions imposed by UNESCO. So what I thought, let us create a geopark in the hearts of all our school kids and all the citizen scientists across the length and breadth of the country. The talk is dedicated to Ruchiram Sani, the great science popularizer. The story, as it is visible in the rocks, it's a. I'm not telling any technical details. In fact, my target is not this learned audience I'm talking to. My target is are their families and their kids and grandkids across the people whom they know. So this is one picture which is giving you an overview of 300 million years Upper Spiti Valley and 300 million years of the history of the Earth telescoped into one shot. And uh, I've tried to copy the phrase used for Grand Canyon. They called it a rainbow in rocks. And the colors are not as varietyful as they are in the um, Grand Canyon, but Spiti is very, very colorful. This is one instance when about 20 years back, I ran into a school uh, teacher, Dorje, and he gave me shelter and food and chit chat at dinner. He wanted me to repeat to his kids. I was in a hurry, but he whistled and called all these little ones. This was our one experiment which started off this outreach to the school kids, and each one of them collected some chips from uh, the Chicham village, and the school has a collection, and all of them had a collection. So this was a beginning. This was an experiment which impromptu I happened to make accidentally. And this was another instance when we were walking across together with the international group led by Dr. Om Bhargava. And as usual, the kids come running and ask, साहब क्या कर रहे हैं साहब जी? और पीछे में ये की village है. You have the Jurassic Kyoto limestone, and I quickly told them in half a minute in Hindi that we are on the Jurassic rocks, and some kids asked me, Jurassic है तो जी इसमें dinosaur क्यों नहीं मिलता? And I had to explain to them these are marine and dinosaurs thrive on the land. And the friends from abroad, they asked me, what did you do? You managed to tell them in 1 minute the story of the key village and the rocks around. I said, yes, I did, because this is a mandate to me by Geological Society of India. BPR had asked me that since I'm a crazy communicator of geosciences, why not communicate? And he gave me a mandate to go with this outreach. And this just one figure I used to, I don't uh, use these jargon on the left. I use only the pictures and the animal names, how they evolved over the geological time. And the total crux of the whole story is that Himalayas have the grandeur and the excitements of its landscapes and the tourism and ecotourism potentials. This is a huge, huge potential which we could have exploited and we did not. And we may not be able to do it if we continue to make the mistakes we have made over the years. Our areas have been the focus of nearly 200 years or 250 years. We have the third oldest geological survey in the world, but we have insufficient focus on earth and environmental sciences, and it's leading to poor nation building. Informal education in both the sciences is the only way when we have lagged behind informal systematic education in both schools, colleges, universities. Science, I propose the science cities all over in all towns, small science cities, not the big grandiose types.
mini museums in all panchayats. My focus is the grassroots panchayat schools. Without that, we should forget about any geopark network in this country. If we cannot educate the masses, we cannot ever go ahead with our conservation, exploration, environment, and disaster management. Without involving our 130 करोड़ जब देशवासी साथ नहीं होंगे, अगर उनका दिल नहीं समझेगा जो हम बोल रहे हैं, और वो नहीं समझेगा अगर हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे और किसी शब्दावली के उसमें बेड़ियों में जकड़े हुए बोलेंगे। तो बीच बीच में मैं थोड़ी हिंदी बोलूंगा, हालांकि वी आर विद द नेशनल ऑडियंस वेयर पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इसलिए आई विल स्टिक टू इंग्लिश, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। और नेचर एजुकेशन इज बेस्ट अचीव्ड with weekly family visits to museums and science cities. In Chandigarh, this experiment we have carried on for a long time. In fact, our Natural History Museum in Punjab University is frequented by school kids, parents, and lots of people from the university. But still, there are people who do not differentiate between geology and zoology. Western world built up a network of geoparks, geosites. They used to call it national parks, but whatever, it's a comprehensive, geopark is a very comprehensive coinage, which requires very, very tough criteria, which perhaps will be a very, very tough job for us to meet. So we should, for the time being, forget about calling everything, proposing everything. ये भी geopark है साहब, इसको भी geopark बना दो, उसको भी बना दो, कोई भी नहीं बनेगा इस तरह से। बट हमारा जियो पार्क अगर इन स्कूल के बच्चों के दिल में बन जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शुरुआत होगी, और ये बना लेंगे। हमारी जनरेशन ना बनाएगी तो वो वाली जनरेशन बना लेंगे। Our rich landscapes and are a blank check of Mother Nature. We can encash with a bit of regular outreach by all awakened citizens, geoscientists, and environmentalists. Being naturally rich but remaining financially poor, hungry, and downtrodden is our national tragedy. So this is my mandate is that across the country, बोलिए, बंगला बोलिए, तमिल बोलिए, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, जो बोलना है बोलिए, बट एक इमोशनल बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलिए, और जो आप करते हैं टैक्स पेयर के मनी से, थोड़ा सा उसका मजा अपने टैक्स पेयर को करवा दीजिए। वही अल्टीमेटली, ये थोड़ा अटपटा लगता है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और उड़ा सकते हैं, बट गांधी जी ने वो जो टैगोर का गीत गाया था, एकला चलो रे, वही है कि जरूरत है, आप समझते हैं जरूरी है तो कर दीजिए, बात की बाद में देखी जाएगी। और जो हंसेंगे शायद उन पे वक्त हंसे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बिकॉज मैं एनवायरमेंट और जियोलॉजी को, जियो साइंसेस को मिक्सअप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नेचुरली बोथ आर इंटीग्रेटेड। होता क्या है, हम जियो साइंसेस के निटिग्रिटी में फंसे रहते हैं और एनवायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं, या कभी कभी एनवायरमेंट करते हैं तो एनवायरमेंटलिस्ट हमको सीरियसली नहीं लेते। सो धरती सभी की है, ये खाली, ये किसी के बाप की नहीं है, ये हमारे बच्चों की है, उनके बच्चों की है, इन पक्षियों की है, और वाइल्ड लाइफ की है, और कुछ भी है जो धरती पे, इंक्लूडिंग दिस कोरोना वायरस, सबकी है। तो धरती का हिसाब किताब थोड़ा सा हमने जो इसमें जोड़ा है, उसमें जो क्रक्स है, मैं इसको, बहुत सारा लंबा है, इसको पढ़ूंगा नहीं, पर ड्रेसिंग अप एज पर वेदर and saving power wasted in warming or cooling may help us delay the global warming. Now, इसमें कई सारे पहलू हैं मेरी बातचीत में। पानी एक है, बाय चांस किसी बच्चे ने मेरा नाम टेडेक्स टॉक के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज में रिकमेंड कर दिया था, तो एक पहली बार था कि 15 मिनट में टॉक देनी पड़ी थी। पर पानी भी हमारी जियो हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है, एनवायरमेंटल हेरिटेज का हिस्सा है। नदियां, झील, हमारा समुद्र, ये सब कुछ हमारी लाइफलाइन है। इसको किसी तरह से ये समझना, इसकी इज्जत करना और बचा के रखना, यही है। इनफैक्ट हम अक्सर समझते हैं कि जो पर्यावरण का मुद्दा चला है, अल गोर ने चला या पता नहीं आईपीसीसी ने चला, पर सच्चाई ये है कि हजारों वर्ष से हमारे हिंदुस्तान में एक हर घर में एक शांति पाठ होता है, जो पूरा टोटलिटी ऑफ एनवायरमेंट, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रार्थना होती है। तो
मेरा मैंडेट जो है, मैं आपको कुछ माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आप बहुत विद्वान लोग हैं। मैं सिर्फ आपसे एक एक्सपेरिमेंट अपना शेयर कर रहा हूं, जो मैंने इनको दोनों को मिक्स किया और वो एज ए स्ट्रैटेजी मैंने इस्तेमाल किया। भगवान की दया से एक एनवायरमेंटलिस्ट हमारे बीच हैं जो इसको चेयर कर रहे हैं, और हमारी एक ट्रेड सीक्रेट है जियोलॉजिस्टों की, जो उनके सामने एक्सपोज हो जाती है, बट मुझे कोई बात नहीं, वो भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं कह रहा था कि विजुअली मैं एंटरटेन करना चाह रहा हूं और विजुअली ये क्यूरियोसिटी दिखाना चाह रहा हूं। वो जो बच्चों ने पूछा था कि साहब ये हिमालय कैसे बना, वो चिचिम वाले बच्चों ने जो पीछे में मैंने तस्वीर दिखाई थी, वो थोड़ा सा खड़े खड़े ही मैंने हाथ के इशारे से और समझा दिया, और उन बच्चों को समझ लगा कि ये हिमालय चीन से टकराया है, भारत आजकल भी टकरा रहा है, और उसी के चक्कर में इतना बड़ा पहाड़ वो अभी भी ऊपर चढ़ रहा है। और कुछ दृश्य आपसे फटाफट शेयर करने मुझे स्पीति घाटी, और ये नक्शा, इस पे अक्सर बात हो रही थी, मैंने नक्शे से वो जो कॉलम है वो उड़ा दी है, बिकॉज मेरे लिए उस कॉलम का कोई महत्व नहीं है, पर एक ये जो आप में जो रंग भरे हैं पिछले 200 साल में भूवैज्ञानिकों के खून पसीने से, ये कहानी है जो आपके सामने है। ये पूरा का पूरा स्पीति बेसिन, और मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूं एक छोटा सा एरिया, रेड्डी साहब अक्सर मुझसे कहते रहे और मैं उनको बता नहीं पाया कि जियो पार्क तुम कौन सा प्रपोज करते हो। आज खुले महफिल में कर ही देता हूं एक जियो पार्क प्रपोज, और मान जाएं तो मान जाएं, नहीं तो मेरा तो जियो पार्क यही है। ये आने वाला है अभी आपके सामने। एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था मैंने 2006 में, जो कलाम साहब ने पढ़ के मुझे इन्फॉर्म किया था, और मौका आया था, मंजीत मुजुमदार और हम इकट्ठे, ये रहा मेरा जियो पार्क। मोरनी पहाड़ पे ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां हर फैसिलिटी है, और ज्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ से हार्डली 1 घंटे में पंचकूला के रास्ते से लोग वहां पहुंच जाते हैं। और यही है वो, ये काफी, इसमें स्ट्रोमोडोलाइट्स आपको आजू बाजू में दिख रहे हैं और काफी भयंकर है। बहुत पहले मैं एक बार, तब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मैं अभी भी गाड़ी से कहीं नहीं जाता, पर बस से गया था मैं अपने बच्चों को लेके, वो छोटे थे, तो मुझे वहां किसी ने रोका कि आपने इस गुफा के ऊपर अपने बच्चे बिठा रखे हैं, यहाँ पे कल लेपर्ड बैठा हुआ था, प्लीज खतरा मोल ना लीजिए। एनीवे, फटाफट, ये बड़ी झाड़ियां हैं इसके अंदर, बट एक अद्भुत, मैंने स्ट्रोमोडोलाइट्स दुनिया भर के काफी काफी देखे। बनर्जी साहब की तो रिस नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा देखे, पर मैंने भी काफी देखे पिछले 51 साल में। ये स्ट्रोमोडोलाइट्स का एक्सपोजर और इसकी इको सेटिंग, इसकी एक्सेसिबिलिटी, हर क्राइटेरिया से मुझे बहुत सुटेबल लगती है फॉर कैटेगराइजेशन एज ए जियो पार्क। देखिए, स्ट्रोमोडोलाइट्स के एक्सपोजर्स हर साइड से इतने अद्भुत हैं, इतने गजब के हैं कि ये मैंने अभी 1 घंटा पहले ही फैसला किया कि यही है मेरा प्रपोजल, और बिल्कुल सरेआम खुले महफिल में इसको मोरनी के शेरला की गुफा को, शेरला मीन्स वो उसको शेर समझते हैं लेपर्ड को, और इसलिए उसको शेरला बोलते हैं, और इसको मैं प्रपोज करता हूं एज ए जियो पार्क। ये एरिया हिमालय में पड़ता है, बट ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली ये हरियाणा की पहाड़ियां गिनी जाती हैं। मोरनी इज इन हरियाणा, बट नेवरदलेस दिस इज द हिमाचल, दिस द हिमालयन स्ट्रोमोडोलाइट लोकेलिटी। ये इन सीटू नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि टेक्टोनिकली उथल पुथल में हिमालय की उत्पत्ति में एक वेज शेप्ड वो जो बॉडी है वो उसमें टर्शरी में फंसी है, बट बहुत ये आजू बाजू का नजारा है। और ये है बहुत पहले, ये मैं यहाँ पे उनको, विभूति और कमल अग्रवाल को लखनऊ से आए हुए थे, लेके गया था, तब की तस्वीरें थी, मेरे को मेरे लैपटॉप में मिल नहीं रही थी, अभी मैंने 2 घंटे पहले किसी तरह से ढूंढ निकाली। ये जर्नी है जो मैं फटाफट ऑडियंस को, और इनफैक्ट आपके माध्यम से, ये मैंने बहुत लोगों से पूरी पावर पॉइंट ओरिजिनल क्वालिटी की शेयर की है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट रवि टू शेयर इट विद ऑल दी फ्रेंड्स हु मे केयर फॉर इट। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये फॉसिलिफरस लाइमस्टोन है, इसका नाम नहीं बोलूंगा, इसको तांडी है, पीछे में तो तांडी लाइमस्टोन बोल देते हैं, पर ये क्योंकि क्रिस्टलाइंस है रोहतांग की, जिसमें ग्रेट हिमालयन रेंज में, जिसमें ये इनफोल्डेड है,
तो ये बड़ा हंगामा हुआ था, जनरल जियोलॉजी में पर्चा छपा था, तब मैं हैदराबाद में जीएसआई में होता था। पता नहीं कौन थे कि साहब फॉसिल्स मिल गए हैं क्रिस्टलाइंस में। तो एक्चुअली फॉसिल्स तो लाइमस्टोन में ही मिले हैं, वो क्रिस्टलाइन में फंसी थी। तो ये थोड़ा नजारा रोहतांग के पार का, ये क्रिस्टलाइंस हैं सभी। हमारे सेडिमेंटोलॉजिस्ट, स्टार सेडिमेंटोलॉजिस्ट उमाकांत शुक्ला खड़े हैं, और ये बड़ा शिगरी कॉम्प्लेक्स चंद्रा वैली का, ये भी एक जियोपार्क साइट हो सकती है, बट बड़ा भीषण एरिया है। 1962 के स्नोफॉल में श्रीकांतिया साहब, पार्टी साहब और पूरी जीएसआई की पार्टी फंस गई थी। ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस हो गया था कि पार्टी लापता है और शायद मर चुकी है। और 21 दिन के बाद में जिंदा जागता चंद्रा रिवर को पार करके वो अपने सब तंबू शंबू लेके आ गए थे। और इस तरह की कहानियां, इस तरह की आप बीती बहादुरी के किस्से, ये जियोलॉजिकल वॉरियर्स के थोड़े इस देश में कम कहे जाते हैं। एक ये भी मेरी अपील होगी कि जो रोमांच है, जो मजा है, जो एक उत्साह है, उसको थोड़ा सा जिंदा रखने का, और उस फोकलोर को और सच्ची गाथाओं को रिकॉर्ड करना और उनको दोहराना। और यहीं पे मैं श्रीकांतिया साहब को सलाम बोलता हूं फॉर ऑल इज वेलर एंड ग्रिट्स एंड गट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से यहाँ पे स्टिबनाइट एज ए स्ट्रेटेजिक मिनरल वाज बीइंग माइंड, और इसी की प्लेन टेबल मैपिंग में श्रीकांतिया साहब वहां पे गए हुए थे, द जीएसआई पार्टी। एंड ये है, ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर सामने में बड़ा गंदा सा दिखता है, बट दिस इज परहैप्स द बिगेस्ट ग्लेशियर in the Himachal. I think glaciers can be also the, we could call a glacier and the adjoining, this entire thing, I would say, अब मेरे बस का नहीं है, पर जवान लोग तो अभी बैठे हैं जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए जियो पार्क आने वाले भविष्य में करें। पर वो जियो पार्क आए ना आए, जब भी आए सो आए, पर मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और इसकी फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी एक नए सिरे से करके उसका थोड़ा प्रचार हो, विस्तार हो, और दुनिया जाने कि हमारा अद्भुत हिमालय, हम शेयर करते हैं इसको आसी पड़ोसी देशों से। उसके बारे में भी मुझे कहना है कि अगर ये हम लोग इस इकोलॉजी को जिसको शेयर करते हैं, अगर यहीं पे हम शेयर्ड जियो हेरिटेज सेलिब्रेट करें और इसको जियो टूरिज्म को, इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, कि यूरोप की तरह इस एक देश से दूसरे देश में लोग आए जाएं, विज्ञान का, इकोलॉजी का मजा लें, और उस पर रिसर्च करें, उस पर लिखें, उस पर एल्बम्स छापें, वीडियोग्राफी करें। वाइल्ड लाइफ जो शुरू की तस्वीर थी, स्नो लेपर्ड इज क्वाइट फेमस। जब मैं और सुदर्शन कंवर वहां पे होते थे, तब भी एक ऑस्ट्रियन वहां पे तंबू गाड़ के बैठा था जो स्नो लेपर्ड पे वीडियो बना रहा था। सो ये एक अगर चालू हो गया, अगर ये चलन हो गया, तो मैं दावे से कहता हूं ये जो टुच्चे टुच्चे टेररिस्ट इधर उधर घूम रहे हैं, जो लड़ाई की बात करते हैं, वो उनको उन्हीं की जनता जूते मारेगी, बिकॉज धन दौलत यहीं से आएगी। हम गरीब क्यों रहें जब हमारा टेरेन जो है वो वर्ल्ड क्लास है दुनिया का। हमारे पास इतना बड़ा हिमालय है, यूनिक, और इतना बड़ा आइलैंड टेरिटरी है, इतना बड़ा ये चंद्रताल हमारी क्या गजब की झील है। ये भी वही दृश्य है जो उधर का शुरू में अपर स्पीति में दिखाया था। यहाँ भी एक तस्वीर में 30 करोड़ साल का इतिहास है, हर रंग की चट्टान। ये धरती के इतिहास का एक पन्ना है जिसको थोड़ा सा खुरचना है, थोड़ा सा तोड़ना है, थोड़ा थिन सेक्शन देखना है, थोड़ा तोड़ फोड़ के माइक्रोफॉसिल निकाल के देखना है। यही तो है धरती के जो से हमारे जासूस, हमारे भूवैज्ञानिक करते हैं। पर अगर ये पर्यावरण विदों के साथ मिलके हम इस झील को और इन चट्टानों को, उनके पेलियो एनवायरनमेंट को इकट्ठे स्टडी करें, तो एक नया इडियम निकलेगा इस सारी रिसर्च से। और मनाली ले जाइए तो ये छोटी झील है सूरजताल, बट बहुत शांति वाली सुंदर झील है। और क्या दृश्य है। मैं कई बार कई एक्सपीडिशंस में, इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस में स्पीति गया हूं। कई बार मैं भार्गव साहब का असिस्टेंट बन के गया हूं, और उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी और गाइडेंस रही है मुझे।
तो ये भी एक शायद ऐसा ही था जिसमें धीराज भी थे शायद साथ में, और धीराज की शायद पहली विजिट थी वो स्पीति की, बट अरविंद जैन भी थे। और ये चंद्रा वैली की एक सड़क थी, मैंने लिखा है कि भगवान की दया से टूट गई। इनफैक्ट हम जब वहां काम करते थे तो सड़क नहीं थी, और चंद्रताल बहुत अच्छी थी। चंद्रताल का बेड़ा गर्क हो गया था इस सड़क के कारण। इनफैक्ट हमारा कुछ मैंडेट होना चाहिए कि एक हिडन जो प्लेजर है और एक दूरी जो है वो एक सुरक्षा कवच है इन अद्भुत स्थलों के लिए। तो सड़कें बिन बात के अंधाधुंध ना बनाएं, जो बनी है उन्हीं को ठीक रख लें, और जहां जरूरत नहीं है वहां ना बनाएं। थोड़ा पैदल चल के जाने का जो दम रखता हो उसी को हक हो जाके मजा लेने का, और जो ना जा सकता हो चॉपर फ्लाइट जरा रखिए। ग्रैंड कैनियन में सैकड़ों चॉपर फ्लाइट्स रोज होती हैं, मैंने तो हिमालय में एक नहीं देखी, पता नहीं क्या हो गया। हमारा अगर कोई वेंचर है, कोई एंटरप्रेन्योर आना है जो टूरिज्म का आएगा, टूरिज्म का, तो उसमें चॉपर्स शुड हैव अ रोल। एंड ये रही, अगर आपको सच में कोई लैंडिंग पैड चाहिए, मेरे ख्याल से भार्गव साहब ने कभी सजेस्ट किया था, ये बने फरित ये एयर स्ट्रिप्स बनाई तो हैं, थोड़ी सी पक्की कर लो, साइड में थोड़ा सा पक्का कर लो और उतर जाओ। कोई चवन्नी खर्चने की जरूरत नहीं है, भगवान ने क्या गजब की आपको घाटियां दी हैं। ये थाबो की मोनेस्ट्री और इसके आसपास में वो अपने जो प्लांट फॉस, ये तो हमारा किब्बर का वो स्पीशीयल आ गया, इसको छोड़ दूं। ये वो थाबो, बीरबल साहनी साहब 1938 में 1938 में इस प्लांट फॉसिल लोकेलिटी में गए थे। तब क्या कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी। क्या गजब का भूवैज्ञानिक था, क्या गजब का पेलियोबॉटनिस्ट था वो इंसान। और ये देखिए, मेरे को इनके ठीक से नाम नहीं मालूम है, मैं पेलियो एल्गोलॉजिस्ट हूँ कैम्ब्रियन टाइम का, इसका मैं ठीक से कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रखता, बट मजा तो है ना देखने में। तो जिसको रिसर्च करनी है वो रिसर्च करे, पर जरा देखिए तो क्या गजब की प्रिजर्वेशन है। और ये एक एग्जांपल आपके सामने, ये एक फॉसिल रीफ है, ट्रायसिक का रेयर फॉसिल रीफ है, जो यहाँ पे हिमालय में ये मिला थैंक्स टू द research of Dr. Bhargav. He missed it in the previous visits, but he was the one who, but आप हमारी देश का ट्रेजेडी देखिए, ये डैम का एक मलबा पूरे रीफ को ढक गया, इधर भी तो क्या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। भूवैज्ञानिक बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, जरा गजब से दम के हमारी आवाज उठनी चाहिए, हमारी कलम उठनी चाहिए। और ये ऐसी संपदा अगर कोई ना पढ़ा इंजीनियर करे तो हमें उसको समझाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ लेने का, मीडिया को, राजनेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाने का हमारा एक जिम्मा है। इनफैक्ट आई हैड द चांस टू give some lectures in the Mussoorie Academy, and I told them about such small things which create a big damage to our natural heritage. ये एक मूवी थी, मैंने अभी भेजी थी रवि को, जो IYPE की जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने निकाली थी, 3 मिनट की, लेगेसी ऑफ मैन टू अर्थ एंड लेगेसी ऑफ अर्थ टू मैन। ये लेगेसी ऑफ अर्थ टू मैन है जो हमने तोड़ डाली, और जो जिसको ढक डाला बिन बात के। और वैसे तो सड़क पे बड़ा गर्क हो ही रहा है शिमला वाली पे। ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ये फुटप्रिंट्स हैं डायनासोर के, जो एक माइन में, जुराज में, स्विट्जरलैंड मेरा थोड़ा आना जाना रहा है, तो ये माइनिंग बंद कर दी गई उसी वक्त और नेशनल पार्क ओपन हो गया। हमारे देश में नेशनल पार्क ओपन होगा, कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आप ये देखिए, क्या ये मैंडेट वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। जो कीमती है उसको, उसकी कीमत इमीडिएटली आंकी जानी चाहिए। किसी भी अनभिज्ञ और मैं हाश नहीं होना चाहूंगा, जो समझना, जिसको समझना हो उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। किस तरीके से समझाना है, किस भाषा में समझाना है और किस किस माध्यम से समझाना है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अखबार में भी लिखने का थोड़ा सा, ये डायनासोर के चक्कर में, इनफैक्ट मैं डायनासोर और सुनामी के चक्कर में मैं एक अखबारी जियोलॉजिस्ट हो गया, और मैंने कई अखबारों में लिखा, हिंदू में भी लिखा। और ये आपके सामने ये म्यूजियम हमारे साहनी साहब ने जो क्रिएट किया था, आप देखिए, सरकार किसी को चोरनी नहीं देती। 30 लाख रुपए मिले थे और 10 सेक्टर में प्राइम लोकेशन पे एक
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम डायनासोर मैन का बना, साइंस सिटी में एक डायनो गैलरी बनी। तो ये मेरा एक इवन जो विजुअली चैलेंज हैं वो भी कुछ जान सकें, इस तरह का एक पन्ने में मैंने ये धरती का इतिहास लिखा था किसी अर्थ डे पे, और ये दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके। सो एक सरल भाषा में एक पन्ने में, और हम ये ना कहें कि साहब बहुत कॉम्प्लेक्स है, आम जनता को हम समझा नहीं सकते, ऐसी कोई विज्ञान नहीं होती जो आम जनता ना समझ सके, क्योंकि विज्ञान पहले बनी और धरती का जो सत्य है वो परम सत्य है, वो पहले था, हम बाद में आए हैं। और ये सब कुछ मजा हम अकेले न लें, और फिर ये भी ना कहें कि साहब हम तो जार्गन के बेड़ियों में फंसे हैं, हम कैसे ग्रास रूट पे उतरे। ये एक एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट की आप देखिए, एक पारेचू नदी में, ये ट्रिब्यूटरी है स्पीति की, लैंडस्लाइड हुआ और ये भर गई, और 2000 जुलाई में 31 को एक पहले भी फ्लैश फ्लड आया था सतलुज में, जो यहां से नहीं आया था, वो सतलुज से आया था। और एक रात में, रात के 1 बजे 98 ब्रिजेस और पावर हाउसेस सतलुज में चाबा तक सबके सब तहस नहस हो गए थे। और 5 साल ये हाहाकार मिटता रहा कि साहब ये दोबारा फटी, पर ये तो फटी ही नहीं थी। ये फटी जब अपने द ग्रेट कुंभी वॉज कैंपिंग एट लियो, और बेचारा इधर था, तंबू उधर था, राशन पानी उधर था, टी शर्ट में था, उसने कैमरा उठाया, फटाफट फोटो खींची, और ये रहा। ऐसे होते जियोलॉजिस्ट साहब, पर पता होना चाहिए ना इनको, वो कोविड वॉरियर बोलते हैं, जियोलॉजिकल वॉरियर तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर गए। ये तस्वीर के लिए 18 दिन भूखा प्यासा धक्के खाए बेचारे ने। आजकल भी कोविड से ये आर्टिकल छप नहीं पाया था, बट ये मैंने लिखा कि साहब ये भी हो सकता है कि पारेचू का भ्रम और था कुछ और। तो ये पूरी कहानी हमने लिखी थी कि इसमें सैटेलाइट इमेजरी से और अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन से आप उसको धीरे धीरे करके तोड़ सकते थे। पर 5 साल के बाद में फिर फ्लैश फ्लड आया, और दिन के 3 बजे आया, तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं मरा, पर चीनी जो थे वो 20-22 के करीब लाशें हमारे यहाँ पे बह गई। और ये हर रोज की एक टॉप न्यूज होती थी, तिब्बत पारेचू की झील आज फटी और कल फटी। पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पहलू है, ये भी हमारी एक कम्युनिकेशन, जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन आई वुड से, उसका जरूरी। अब इनका ये कहना कि साहब हमने बोला था किसी ने सुनी नहीं, अरे आपने क्या बोला था जो किसी ने सुनी नहीं? जरा तमीज से बोलते ना, आपको जाने बचानी थी। ये ऐसे ये वाला होने दिया ना आपने 2-4 मरी आवाज में अनाउंसमेंट करके छोड़ दी। तो थोड़ा सा दम से बोलिए, थोड़ा इफेक्टिवली बोलिए। और आजकल के उजलूल कितने सारे मैसेजेस सारे दिन आते रहते हैं, जब 6000 पता नहीं 5000 10,000 लोग मरने वाले थे, तब ये तस्वीरें, अभी 5 तस्वीरें ये पिन वैली की, पिन पार्वती पास की हैं, मेरी अपनी खींची हुई नहीं है, बाकी सब मेरी थी। ये कुछ मेरे दोस्त हैं स्विट्जरलैंड में, उनके दोस्त यहाँ गए थे, तो उनको पता लगा कि मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, तो उन्होंने ये सुंदर, इनकी क्वालिटी कहीं बेटर है, ये मुझसे शेयर की। और ये वाली तस्वीर भी उन्हीं की दी हुई है। पर ये सोकर झील में मैं जर्मन्स और कोटलिया के साथ में, नैनीताल वाले जो हैं, वी वर ड्रिलिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। और एक सौंदर्य, ये हिमाचल का नहीं है, बट नेवरदलेस एक क्वाटनरी झीलें हैं जो इनका सौंदर्य, इनके मूड्स और इनकी वेरिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम कैसे होती है, इस दलदल में घुस के और फिर अंदर में कुछ देखना बड़ा खतरनाक काम है। कभी कभी आप बाहर निकल नहीं पाते। ये कुछ उदाहरण हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे म्यूजियम में, यूनिवर्सिटी के और इधर में कैसे आते थे। इनफैक्ट ये आ जाते थे, जस्ट कोई बोल देता था कि वहां पे कुछ लोग हैं जो आपको मजेदार दिखाएंगे चीजें। कुछ लोग मजाक भी करते थे कि साहब ये देखिए आलूवालिया सीधे अस्पताल से बच्चों को म्यूजियम में ले आता है। बट नेवरदलेस ये प्रथा चल पड़ी है। हमारे वो पुराने बच्चे जो स्टूडेंट्स थे, स्पेशली गुरमीत कौर बहुत ही उम्दा आजकल काम कर रही हैं, और डॉक्टर सतेंद्र ढिल्लों, शी इज इन GSI, शी इज a part of this. Lots of youngsters have joined this crusade for mass communication and enjoyment of environment and geosciences. ये जो पीछे में आपको ये दिख रहा है टर्टल, या ये वाला, ये हिंदुस्तान में इस साइज के बड़े
सिर्फ 4 हैं, एक कलकत्ता में, एक चंडीगढ़ में। अब ये है धरती की धरोहर जो संजो के रखने की, जिसका एक बात करने की बात है। तो हर साधारण चीज को हम उसमें डाल दें कि बड़ी स्पेशल है, तो फिर कुछ भी स्पेशल नहीं रहता। तो ये बड़ी फेमस है ये गैलरी, बहुत मॉडर्न डिस्प्ले नहीं है, बट ये पीछे में 2 मिलियन ईयर्स का चंडीगढ़ का सिनेरियो, ये पेंटिंग हमारे राजीव पटनायक जो आजकल हेड हैं उन्होंने बनाई थी। वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, और ये सिनेरियो देखने के लिए लोग आते थे कि साहब चंडीगढ़ पहले कैसा होता था। आप देखिए, स्कूल आपको 3 घंटे के लिए बुलाए और बातचीत करे और बच्चे बैठ के आराम से सुने, ये बड़ी भारी बात है। अब इन छुटकों को हम डायनासोर का बताएं या जुरासिक क्रिटेशियस बताने की जरूरत नहीं, पर ये बच्चे मेरे ग्रैंड ट्विंस हैं, ये अमेरिका से आए थे, पर इन्होंने ये देख, वहां पे छोटा बच्चा जो है प्लांट फॉसिल भी जानता है, एक माइन म्यूजियम में भी जाता है, और वो ऑर्डोविशियन के फॉसिल सिंसिनेटी में कलेक्ट भी कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे जियोलॉजी और जूलॉजी में फर्क क्यों नहीं पता लगता फैकल्टी को? ये एक सोचने का विषय है कि हम जब तक जियोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंसेज में खाली पीली ऊपर ऊपर की बात करेंगे, तब तक हम गुर्बत से और इस भूख से और इस जंजाल से बाहर नहीं निकल सकते। Geology and environmental sciences are the key to prosperity. This is my message. Ravi, you just need to tell me कि वक्त हो गया, I can drop my talk anywhere. This is structured such कि मुझे I need not hang on जबरदस्ती, एंड कहीं पे भी इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपना काम तो कर चुका हूं। और ये भी एक आर्टिकल था, इनफैक्ट सानी साहब हंसा करते थे कि अरुण म्यूजियम मैंने बनाया यार, और तुम आर्टिकल लिखे जा रहे हो। मैंने कहा सर 400-500 रुपए का चेक आएगा और लोग पढ़ के कहते हैं यार अच्छा लिखा। तो इसमें मैंने वो कहीं लिखा था कि डायनासोर्स की मेमोरी फॉसिलाइज नहीं होती, तो और मैमल्स जो थे वो भी गिन गिन के बाद में डायनासोर्स को खा गए, एक के पेट से निकला। तो इट वाज वेरी कैची, तो उनको पसंद आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को, उन्होंने छाप दिया। ये हमारे म्यूजियम के वो फॉसिल जो हाथी के, ये बच्चे को बताया कि ये ना खाने वाले दांत हैं हाथी के, दिखाने वाले नहीं है। आप देखिए बच्चे किस एकाग्रता से वो नोट्स ले रहे हैं बच्चे, खाली ऐसे नहीं कि घूम के चले गए हैं, वो इसमें बहुत सीरियसली, एंड द टीचर्स आर देयर इंश्योरिंग के कोई टूट फूट ना हो जाए यहाँ पे। एंड ये हम बहुत मशहूर हो गए थे यूनिवर्सिटी में कि साहब कोई भी आए तो म्यूजियम में जरूर जाना है। तो मैंने, ये फिजिक्स की वर्कशॉप थी, तो फिजिक्स वाले ले आए, तो कई सारे लोग उसको मेरा म्यूजियम बोला करते थे। मैंने कहा मेरा नहीं है। और कोई बोलता है यार ऐसे करते हो जैसे तुम्हारे बाप का। मैं कहा हमारे सबके बाप थे अमर सानी, और ये उन्होंने बनाया था, और इसका मजा ले लें, मजा लोगों को करवा दें। ये फिजिक्स के टीचर से वर्कशॉप, तो कुछ फॉसिल से डायनासोर वाले, जो ये आशु खोसला है, मैंने लिखा है दैट ही इज द डायनासोर अमंग द जियोलॉजिस्ट। इसके ये बीच में जो खड़ा है दरअसल का, हाँ ये रहा दाढ़ी वाला, इसने एक डायनासोर का थाई बोन ना एक गद्दा बिछाया हुआ है अपने कमरे में, उस पर लिटा रखा था। आजकल पता नहीं उसने उठा दिया कि नहीं, बट जो इसके कमरे में घुस जाए वो घंटे 2 घंटे से पहले बाहर नहीं आता। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। वो हमारे रीफ का भट्टा बिठा दिया उन बेवकूफ इंजीनियरों ने, सॉरी बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, इंजीनियर हैं बहुत पढ़े लिखे, बट काम बेवकूफी का किया। ये आप देखिए इतना मशहूर हो गया ये ग्रेट बैरियर रीफ। हमारे आइलैंड टेरिटरीज में क्या रीफ्स नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं भी अंडमान गया था और वहां पे रीफ ही रीफ है, बट एक तो सुनामी तोड़ गई उनको, और ऊपर से रासा, ये देखिए हमारे अंडमान का रीफ है, और रासा ये था जो हमने, ये एग्जाम्पल है आपके सामने एनवायरमेंट और अर्थ की। हमने फिल्म्स ढेर सारी जोड़ जुगाड़ करके इधर से उधर से की। और गवर्नमेंट म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री सेक्टर 10 जो लेकर बुजे का बनाया हुआ बिल्डिंग है, डॉक्टर रंधावा जो डीएससी थे बॉटनी में, वो सिविल सर्वेंट थे, ही वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ द सिटी। तो ये एक स्पिरिट थी वहां पे, अभी भी वो चलती है। कुछ तस्वीरों से आपको दिख जाएगा हमने कैसी कैसी वो मूवीज यहाँ पे दिखाई। बड़ा इसमें मजा रहता था कि हफ्ते भर का प्रोग्राम है और बढ़िया प्रोजेक्टर मिल गया, आप सारी मूवी वाले साहब 5 मिनट में थोड़ा समराइज कर दीजिए डिस्कशन, ताकि डिस्कशन मैं 4.5 मिनट में कर रहा हूँ खत्म। ठीक है। पूरा जो हिसाब किताब है पूरे, आजकल वैसे कोरोना ने थोड़ा सा हवा साफ कर दी,
भगवान भला करे इसका। ये आंख से लेके अंतड़ियां, किडनी, लिवर, हार्ट और नर्व्स, सारे का, जिसको पंजाबी में बोलता ना आवा ही उत गया, वो कर दिया था अपने प्रदूषण ने। और एक और जियो हेरिटेज है हमारी, वो है हमारे हिमालय की हवा। कनाडा हैज बीन एक्सपोर्टिंग एयर कैन्स टू चाइना। $22 का एक डिब्बा भेजता है वो। हिमालय में हमारा जो किन्नौर का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और जो नेपाल के बॉर्डर के साथ के एरियाज हैं, इस पे हंसेंगे लोग कि क्या बात कर रहे हो यार, हवा भी बेचने लगोगे तुम? अरे पानी बेच रहे हो तुम। हमने तो बचपन में कभी पानी बिकता नहीं देखा था, और वो भी गंदा पानी जिसमें प्लास्टिक की घुली होती है, कैंसरस सॉल्यूशन बेचते हो आप। तो हवा में क्या प्रॉब्लम है? और पोटेंशियल है, नौकरियां नहीं मिल रही बच्चों को। तो सबको मेरा संदेश है कि भैया हवा जो है कम से कम उधर की बचा के रखो, और भविष्य का जितना अर्बनाइजेशन है वो पूरा का पूरा आपको हिमालय में छोटे छोटे वो प्लान करने होंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट का क्राइटेरिया एक जरा देख लीजिए। इन सड़कों का बेड़ा गर्क और इन हिमालयन आर्काइव्स का जो बोलते हैं ना, एक बिल्कुल ग्रेवयार्ड बनाना बंद करिए। और आप छोटे वो शहर जिनको भार्गव साहब बोला करते थे द ट्रेडिशनल हिमालयन आर्किटेक्चरल विजडम के साथ बनाइए। ये गगनचुंबी टावर्स ना खड़े करिए। जिस दिन दोबारा भूचाल आएगा, अभी तो शायद दिल्ली का भी वही हाल होने वाला है, उस दिन ये पेंसिल नुमा इमारतें धड़ाम धड़ाम ताश के पत्तों की तरह गिरने वाली हैं। तो वहां पे अच्छा आर्किटेक्चर, लेटरल स्प्रेड एंड हवा, जिसको आप दुनिया भर में बेचना, और साथ में हिमालयन और इको टूरिज्म को बड़े वाइज तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से मार्केट करना, और पानी को बचा के रखना, बिकॉज पानी ही अमृत है। समृद्धि सरेला अधनेय, प्रॉस्पेरिटी इज कंट्रोल्ड बाय वाटर। पानी के बिना कुछ नहीं होता। चंद्रमा पे जाइए, मार्स जाइए, जुपिटर जाइए और सब कुछ करिए, बट देश का और पृथ्वी का बेड़ा गर्क करिए। ये इस तरह की डेवलपमेंट और आगे दौड़ पीछे दौड़ ना करिए। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। ये धरती भी माँ है। हमने मदर डे पे धरती की पिक्चर दिखाई तो बोले साहब ये कैसा मदर डे हुआ? मैं अल्टीमेट मदर तो अर्थ ही है, तो इसको दादी समझ लो, परदादी बस समझ लो, कुछ भी हो, यही है। जियो साइंस फॉर सोसाइटी इज द क्रक्स, इज द मेन थीम ऑफ माय सॉन्ग। यही है गीत जो पत्थर गाते हैं। और एक एग्जांपल आपके सामने, 1500 रजिस्टर्ड केव्स हैं मोरावियन इन दी डिवोनियन, ये अपने चेक रिपब्लिक में। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे +1 +2 के 4 लैंग्वेजेस जानते हैं, टूरिस्ट गाइड बनते हैं और पूरी की पूरी कमाई कर लेते हैं अपनी एजुकेशन की। हमारी क्रोल हिल में चढ़ता ही नहीं कोई, और चढ़ता है तो कोई हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही है। अरे लोग ये बोलेंगे अरे ये तो विदेश में होता है, हिंदुस्तान में थोड़ा होगा यार, अपने बस का थोड़े है यार। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान ये भूल जाए कि हमारे बस का नहीं, हमारे बस का सब कुछ है। सिर्फ हम वैज्ञानिकों को बहुत फ्रैंकली और परसेसिवली बात करने की जरूरत है। और यही बातचीत है जो उस दिन नहीं हुई थी और मर गए थे 3 लाख लोग, और उन्होंने वार्निंग देने वालों ने नहीं दी थी क्योंकि आपने ट्रीटी नहीं किया, थोड़ा सा भागने तो था ऊपर में। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, आप दीजिए। अदरवाइज लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन को कभी बचा के न रखिए, कंजूसी ना करिए। जो लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन नहीं देता वो हत्यारा है। ये हिमालय का भूचाल, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में चर्चा चाहिए, नहीं तो कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर 50 मिलियन आर थ्रेट, चंडीगढ़, ये छोटी छोटी बातें हैं। इनफैक्ट मेरी बातचीत में अक्सर होता है, लोगों को इंप्रेशन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, कुछ ऐसी एनवायरमेंट की बात कर रहा है, कुछ बोरिंग बात करेगा। मैं शुरू में बोल देता हूँ बेटे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। तो मैं शुरू में बता देता हूँ कि अर्थक्वेक में कैसे बचना है। और तो वो ये माउंट एवरेस्ट और ये अंटार्कटिका, इसको सलाम। यही है हमारी धरोहर और यही है हमारी लाइफलाइन। और हिमालयन इकोलॉजी शेयरिंग नेशंस क्रिएटिंग जियोपाथ्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल इंश्योर ग्लोबल पीस एंड एफ्लुएंस। अगर नोबेल पीस प्राइज इस एफर्ट पे नहीं मिला तो शर्त लगी आप सबसे, पर कम से कम हमें अक्रॉस द बॉर्डर्स अपने फेलो कलीग से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जब साइंटिस्ट बात करता है एक दूसरे से तो बहुत ईमानदारी से बात करता है। जय हिमालय, जय अंटार्कटिका। धन्यवाद। Thank you, Dr. Ahluwalia, for the excellent lecture and very enlightening one. Now I will open this up for discussion. I think since we started a little late, maybe 10 minutes discussion.
Kindly unmute and put the speaker who wants to raise the question. Please unmute as well as put the camera on so that we can see. एक मिनट मुझे वो करना नहीं आता ना, एक मिनट जरा हाइड कर. या कैमरा तो ऑन किया हमने. Hope you are able to hear me. Yeah. I just want to give you some stats. We have 9 people on live chat, and the most important person in the live chat on YouTube is Rabindranath Padhi, जिनकी mention की थी आपने. Rabindranath Padhi, R.N. Padhi. He is actually hearing you talk. ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि रविंद्रनाथ पाड़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं तो आपको सुन रहे हैं कि श्रीकंठैया साहब के साथ वो हेलो श्रीकंठैया साहब के साथ वो थे उधर and all those 21 days and all that, you know, when he was my director way back, he actually narrated to me. And I would just finish because I am seeing the YouTube thing. I'll read something. Vadhavan Saab ka ye hai. State government efforts and state tourism development needs to be involved in big way is the clear message from Dr. Ahluwalia Saab's discourse. That's a nice thing. Then R.N. Padhi Saab कह रहे हैं कि illustrative talk by Professor Ahluwalia, some of his ideas need a serious follow-up. That's so nice. And then, yeah, in spite of the initial glitches, for which I take the responsibility because we have been trying to do it. But anyway, there hai andher nahi. It has been a nice talk, Professor Ahluwalia. Thank you. पाड़ी साहब कुछ बोल रहे हैं? Go ahead, sir. Can we पाड़ी ask? साहब हाँ बिल्कुल बोलिए ना पाड़ी साहब. अच्छा, Padhi Saab is on YouTube. Yes. So I he's on can only YouTube. see his messages. So kindly others continue with the discussion. Can I ask? Hello. Go ahead, go ahead. So Ahluwalia sir, myself Rashek Reddy. Sir, can you, with your experience, hello, sir, can you please cite a couple of examples which you think are very important and then which we have lost forever from, because we don't have this geoconservation. Any important geological sites by which we have lost, important information, a scientific document, by not observing this geoconservation in India. Just, in case if we can recollect a couple of examples. From anywhere in Well, India. पहले तो ये जो रीफ ट्रायसिक रीफ मैंने बोला, दिस इज एन एग्जांपल व्हिच इज नियरली लॉस्ट, बट भगवान कभी ना कभी हटा देगा उस डेब्री को. बट द बिगेस्ट लॉस व्हिच इज हैपनिंग ओवर द लास्ट 7 years is on all the expressways which are very unwisely, unscientifically being constructed and again landslide hota hai, again hota hai. Now they have put concrete walls. कोई geologist को अगर ऊपर में जाके कोई rock देखनी हो, he has to climb from 30 meters to 100 meters with the staircase to see the rock. They have covered up the exposures. The right to observe has been denied to geologists. Nowhere in the world such a random, such a systematic destruction and covering up of geological information has happened. Way back in 94 or so, the code had made people erase that paint which they had put on the rocks of Kulu Manali Rohtang for advertisement of Pepsi Cola and falana falana. They had to remove. आज कोड का वही, अगर somebody were to cite to code कि साहब आपने तो पेंट हटवा दिया था, इन कंपक्तों ने तो 1 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है. So this has happened. In fact, I had put an abstract in IGC on this issue, and जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि साहब हमें कोई सुनता नहीं. ये सब देखिए इन्होंने ऐसे कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूछ रही, वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा. Everybody gets the treatment he or she deserves. ये हमें सोचना चाहिए, हमें किसी ने क्यों नहीं पूछा, हम क्यों नहीं बोले, हमारा सिस्टम कैसे मर गया.
तो हम मरे हुओं को अपने में जान डालनी होगी और गवर्नमेंट से पूछना होगा और हर किसी से पूछना होगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मैं कहीं पे समझता नहीं हूँ कुछ भी। ये हम वैज्ञानिकों की और जनता की आवाज इसके लिए होनी चाहिए। अगर हमने विलेज लेवल पे जियो साइंटिफिक अवेयरनेस क्रिएट की होती तो वो आजू बाजू वाले गांव वाले बोलते रहे क्या कर दिया यार, वो जियोलॉजिस्ट ने आना था, उसने यहाँ पे पत्थर देखना था, उसमें पता नहीं कौन सा खनिज निकल जाता और तुमने इसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया। कोई वो वाला जो लोकल अपोजिशन होता वो हमारा एक वॉच डॉग होता। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा। दिस इज वैसे पुराने जमाने में सुनते हैं वो डायनासोर। So it's my request to all the London members of this group to list out the important sites which they feel that it has been lost forever from our country, so that we can consolidate them, and that will be useful for us to project to the government that why we need an act like on the lines of archaeological sites, act for geological sites. This will be a supporting document. That's why I asked that question. And in fact, it is a request to all the members to cite such examples. And then subsequently, the members can consolidate it and then make a document. We don't have a document, a single document from our country where what is that is lost for us forever. I feel that's very much needed to support our request for an act in the country for geological protection of the geological sites. Thank you. And sir, I look forward for your proposal, geopark proposal of this area. Yeah, Ahluwalia Saab, I think you have to unmute. You have to unmute. आपका जो ये है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया। Sir Narendra Prasad sir, please join. Okay, if there are no further queries and suggestions, नमस्कार साहब, नमस्कार। हाँ बोलिए साहब। आपका नमस्कार कर रहा हूँ। ओह, थैंक यू सर। Sir, I made can you repeat that my request. Yeah. Hello, sir. Can I talk? Yeah, one please. moment. Professor DMB sir is trying to talk. His microphone is muted, sir. Your microphone is muted. Please Okay, unmute it is. it. Okay. Yeah, Okay. yeah. Now it is okay. Huh? Can you hear? Now I've unmuted it. Yeah. I want to know, when we say that we should make a proposal to a government, then we should be very clear about which government you are talking about. We are talking about the central government or state government or local government or even the village level government. Because ultimately, the whole thing actually boils down to the village level. So unless, even if you have some regulation starting from the central level, nothing will reach up to the village level, and everything will get destroyed by that time. Can I respond, Yeah. sir? One, if you want to see now the thing, there are two scenarios, sir. One is if there is an act and if there is no act. Now today there is no act. If you are very particular about protecting one particular site of a specific site, then we should approach the state government. That is what we did in Vizag, sir. We are based on the recommendation of GSI about the geoheritage site in Vizag. We approached the state government and then requested them that it needs to be protected. And ultimately, we convinced the government, and the government has issued an order and notification stating that this is a notified protected area. That's one scenario which we can adopt now. The second scenario is an act has to be brought in by the parliament. Once it is an act of the parliament, like we have in case of archaeological sites, then the moment the Geological Survey of India declares it as a national geological monument or a national geoheritage sites, it automatically gets protected by law. Well, in practice, something happens is a different thing, but by law, it is protected. Naturally, it has to be implemented. So this is the scenario two. So since No, but
I will interview here. You see, the Geological Survey of India has been doing it for a long time, and they are already identifying. They have identified a large number of places. They have put up the boards. They have put everything. But the protection of that site depends on the state government. That And is what unless I'm, the state government is involved, nothing will happen. sir. I'm answering. That is what my answer. See, the Geological Survey of India can declare it, but they cannot enforce it because there is no act. Now that's why we have to request the central government to, through the Parliament Act, to prepare an act for the protection of the geological sites declared by GSI. Till such time, we have to request the state government, because state government is the owner of the land. So showing that that this is an important geological site and it has been declared by the national organization. So please take care and protect it, otherwise we will lose. That's how we have to convince. That's what we did in case of Vizag example I told. Till Yeah, the act, till the, why the example should be emulated by other states also. no, that depends. That's why, sir. That's why the local task force has to take interest in that. Yeah, We have that's to. right. We formed a task force in Vizag, and then university, INTAC, and I mean, we organized a national seminar, and then we took the help of GSI, we took the help of university, we took the help of this thing, and we made I mean, lot of effort for that, sir. In fact, we have included the entire all stakeholders within the city. I mean, politicians, journalists, university, all. I mean, that was a good experiment and experience for us. But because since there is no act, we have to follow this method as the state government is the owner. That's why I requested in WhatsApp group, kindly identify critically endangered geo-heritage, geo sites. Critically endangered means which we feel that it will be destroyed within a year or two. And then endangered geo-heritage sites which will be within 2 to 5 years. So if we prioritize, then we have to see group members, we should take interest. We should not end up our enthusiasm in, at this stage. We should go beyond that to the ground level. And the ground level, only the people residing in that area, they have to form a group and then convince the authorities and protect it. Then only we will be successful, sir. Yeah, I think this has been done. This preliminary work has. Sir? With all the clauses and everything. Only thing that we have to get hold of some member parliament to put it in the and discuss in the parliament. Yes, that we have been trying from 2010 onwards, sir. Because we have prepared an act and also through and then submitted to the Ministry of Mines in 2013-14 that time, because I organized a seminar in 2013 on geoheritage sites. In 2012, in one of the seminars exclusively for the geoheritage sites, at that time we prepared, on the lines of archaeological sites, we prepared a draft and sent it to the ministries concerned and all that. And then ministry advised GSI to discuss with us and then submit the draft, and that has been submitted in 2013-14 times years. And then we tried, of course, with the local, because one of the professors was a member of the parliament. We wanted to bring it there, but ultimately the governments changed, things have changed, so we were not successful at that time. Now again, I mean, it has to be a continuous process, sir. One is the act, other is taking steps at the local level, because if we wait for the act, the site, we may lose the site. Perhaps I'm not sure whether you are aware of it, because Ministry of Mines may not be interested in doing it, and therefore Ministry of Earth Sciences had taken the lead. They have already organized, they already held a meeting in the Ministry of Earth Sciences, chaired by the Secretary of Ministry of Earth Sciences, and it was there was going to be a big plan out of it, but because of this coronavirus, everything is stopped. Yeah, I understand, sir. Yeah. Okay. Some of you may have been involved in that. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Dr. Ahluwalia, you have any commentary on this, or should we wrap it up? Yeah. I have a very strong comment on it. Yeah. ये सब रूटीन के धंधे हैं WhatsApp one moment, Ahluwalia sir. 1 moment, sir. Please, all of you, keep your cameras down.
put off your cameras because bandwidth issues, we are not able to hear. If you are a speaker, just put on for just 30 seconds and again put off. That will make you audible. Thank you. Go ahead, Ahluwalia sir. भार्गव साहब ने एसडीएम को काजा में जाके रिक्वेस्ट करी कि देखो परमानेंट ट्राइसिक बाउंड्री का सेक्शन को कवर कर दिया जा रहा है और ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप वो भी अगर भार्गव साहब के लेवल का एक उच्च कोटि का भूवैज्ञानिक इतनी करने के बाद में मेहनत इस उम्र में कुछ ना कर पाया तो होगा कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं अगर होगा, अगर को अंडरलाइन कर लीजिए, एक ही ऑप्शन है, या तो कोर्ट के माध्यम से होगा जैसे वो पेंट उतरवा दिया था कोर्ट ने, या दूसरी है ये जो आज की पीढ़ी है, ये बच्चे और इनके बच्चे वो हैं ओनर इस धरोहर के, धरती की धरोहर के, लेगेसी ऑफ नेचर टू मैन। प्रोटेक्ट होगा तो ये इंसानी लेवल पे ही होगा, किसी एक्ट से नहीं होगा। आपको ढूंढने पे कोई एमपी नहीं मिलेगा, सरकार चली गई और अखबार वाला भी नहीं आजकल तो कोई छापता, कोई टीवी वाले को भी कोई फुर्सत नहीं है इसके बारे में कोई बात सुनने की। मेरे ख्याल से ये मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, प्लीज ट्राई ऑल दी, जो तीर आपकी कमान में है सारे चलाइए, बट चलेगा तीर तो या तो न्यायालय का चलेगा या इस अगली पीढ़ी का चलेगा। बीच में कोई मुझे दिखता नहीं ना। पहले जमाने में कोई अखबार वाला लिख दिया करता था और बैंड बजा दिया करता था सरकारों की, आजकल कोई कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल उजड़ा हुआ सिस्टम है। इसमें या भूविज्ञानिक की आवाज चलेगी या फिर कोर्ट की चलेगी, या फिर इतना दम हो आवाज में भूविज्ञानिक की कि वो बोले तो जमाना सुने। और उसके लिए हमें कुछ मंथन करना होगा, हमें ट्रिवियलिटी से बाहर निकलना होगा। फजूल के सेमिनार्स में सजेशन दे देना और किसी बाबू को मिनिस्ट्री में पकड़ाने से कुछ नहीं होता, वो या तो फाइल गुम कर देगा या उसको देखेगा ही नहीं। तो मैं कोई पेसिमिस्टिक नहीं हूं इस मामले में, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर होगा तो कोर्ट के माध्यम से होगा और कोई माध्यम ही नहीं। It should be a multi-pronged approach, sir. No. If you are attacking everywhere, you are attacking nowhere. No, sir. We have gone to the court also in this case. We have gone to the court. We have gone to GSI. We have gone to the state government. You will have to go to the Supreme Court straight away to the Chief Justice. उसको समझा लीजिए तो हो जाएगा। Ultimately, I'm happy to say that we are successful. It has been notified by the state government that it is a protected area and it is being protected. I tell you, about a couple of hundreds of hectares of land out of this total site, which was allotted as a residential plots, were cancelled. And a letter written by one of our members to the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, he judge himself converted into the PIL. We didn't, file a petition. Judge himself converted into a PIL based on the letter of one of our members. So we have tried the court, we have persuaded GSI, we have persuaded the state government, central government. Ultimately, it is declared as a national geoheritage site by GSI, and it is also declared by the state government as a notified protected area. I don't say that everywhere, happened like that, but it took us few years, about 4 to 5 years. Reddy साहब 2007 में myself and Manjit Majumdar, yes, we had a 40 minutes chat with the President of India, जो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने I know sir, और उन्होंने सब कुछ कर लिया। वो जो गोयल थे, डॉक्टर गोयल, उनके कोई पुराने कलीग थे, उनको बोला, 3 घंटे उन्होंने हमारी कहानी सुन ली। और अगर डॉक्टर कलाम जैसे प्रेसिडेंट के कहे पे, और वो गोयल भी कोई साइंटिस्ट थे, ऐसे बाबू नहीं थे, अगर इतना कुछ करने के बाद में कुछ भी ना हुआ, 13 साल तो होगा। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद ना रखिए, रियलिस्टिक यही होगा कि जन चेतना जगा दीजिए और बच्चों के मन में इज्जत इसके लिए, गांव के बुजुर्गों के मन में इज्जत इसके लिए पैदा कर दीजिए। वो हाथ जोड़ेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे भी होगा बचा लेंगे इसको, ये नहीं तो कभी नहीं बचेगी। नहीं सर, हाल का शिमला जैसा मुर्दघाट बन जाएगा भूविज्ञान का, जो बन चुका है। अच्छा, मैं जस्ट इंटरवीन सर, just I would request you, there is one person who has joined this GILSI. He is the student of Professor Biyani and he hails from the southernmost part of Peninsula. He is a student. So if you are able to hear me,
Would you please tell us about your impressions of this particular webinar, please? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। Yes, we are all hearing you. Please put off your camera and talk. ओके सर। गुड इवनिंग सर। इस वेबिनार के बारे में अपना एक राय रखना चाहूँगा। पहले तो आज का जो वेबिनार में जो प्रेजेंटेशन दिया था अलूवालिया सर ने, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था सर। और मैंने भी इससे बहुत सारे पॉइंट्स कुछ उठाए हैं अपने लिए, जैसे कि उन्होंने जो पंचायती स्कूलों में रिवाइव करने के लिए जो पॉइंट उठाया है, वो बहुत अच्छा पॉइंट लिया है उन्होंने। एक लोकल इनिशिएटिव के लिए बहुत बढ़िया है। और एक और उन्होंने था अर्थ और एनवायरनमेंट फिल्म्स जो है, तो उसके ऊपर भी काम करने के लिए एक नया पॉइंट मेरे माइंड में आया है इसको लेकर के। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इससे लिए हैं, अगर कभी फ्यूचर में डिस्कस कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। मेरे को पता नहीं चल रहा मैं अभी कहाँ से शुरू करूं सर, एक बार थोड़ा गाइडलाइन दे दीजिए मुझे थोड़ा। We can be in touch on phone and WhatsApp. कभी भी कॉल कर लेना, मेरा नंबर है 9878684441। कैन यू रिपीट सर? 9878684441। 9878 68441। और Yeah. you can access my Dr. Facebook page arundeep.ahluwalia. I put most of my Yeah, views there. I will. I think, Ravi. Sir, I will give him that. Ravi Garo I will tell give you. him that. ओके सर। मैं अभी अपना पॉइंट्स कुछ अपना बताना चाहूंगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डिस्कशन हुई थी सर, एक्चुअली देयर इज एन एक्ट, नेशनल जियोलॉजिकल साइट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2013 सर। ये जीएसआई द्वारा पहले ही प्रोवाइड करा जा चुका है, बट इट्स नेशनल लेवल। ये पॉइंट सही है कि हमें थोड़ा लोकल लेवल में भी इसको लाना पड़ेगा, स्टेट लेवल में। और मेरा मेन पॉइंट है सर, मैं आई एम एनकरेजिंग जियो टूरिज्म। जियो टूरिज्म क्या है? एक बहुत बढ़िया जरिया है फॉर कनेक्टिंग लोकल पीपल्स एज सिविलियंस, जो नॉन जियोलॉजिकल फील्ड से भी आते हैं एज वेल एज जियोलॉजिकल फील्ड से भी आते हैं, उनको एक नया क्या बोलते हैं, टूरिज्म का माध्यम प्रोवाइड करना। आप जैसे सब जानते होंगे, टूरिज्म इंडिया में जो बहुत अलग अलग तरीके के टूरिज्म है, बट उनमें सबसे ज्यादा फेमस है पिलग्रिमेज वाला टूरिज्म। लोग कैलाश केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा करके टूरिज्म, ये पिलग्रिमेज टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है। बट क्या है, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट सर। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मंदिर और तीर्थ स्थल के लोकल लोग हैं, वो लोगों को अपने कल्चर दिखाने के बदले लोगों के कल्चर में अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो वहाँ के फूड्स जो कि वहाँ लोकल नहीं है, और भी मैगी, पिज्जा, कोक, ड्रिंक्स, ये सब चीजें ये वहाँ के लोकल नहीं है, बट ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है टूरिज्म के कारण। क्योंकि ये दूसरा इस टूरिज्म में उनको एनकरेज नहीं किया गया है, तो नया एक टूरिज्म आया है, उसको हम कहते हैं जियो टूरिज्म, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस चल रहा है सर। मैं सर अभी थोड़ा नर्वस हूँ, मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ सर। बहुत सही बोला तुमने। इनफैक्ट जो टूरिज्म में जियो साइंसेस का तड़का लगाने की बात है। यस सर। Okay, thank you for your thing, and you can be in touch with Dr. Ahluwalia over the WhatsApp or email or whatever, and details. No, not only Dr. Ahluwalia. He can get in touch with any one of us in the whole group. Surely. Everybody Thank you, can sir. Thank you, give sir. them. So now I take this opportunity to profusely thank Dr. Ahluwalia for his very enlightening one, and on the top of it, a very revolutionary suggestion, which is what environmental people would appreciate. That is going to the grassroots level, which is what is really needed. And very categorically, he said that quote, Supreme Court only is one, or we can stop the buck. It stops the buck at that place.
So in that's the kind of valid approach we see in environment also the same issue that unless the ground level, field level people, panchayat level, village level, they are activated, nothing can be done in this. Okay, thank you so much. रवि साहब एक सेकंड के लिए I just want to speak something. Go ahead, sir. Very briefly, sir, because it's. पाड़ी साहब ने पूछा था कि कौन से जो monuments हैं नेशनल जियोलॉजिकल monuments या दूसरे एरिया जो which are being destroyed by activities. So I just remember one boundary fault which was made national geological monuments in 1970s or 80s by GSI. That I just wanted to see and to take some photographs. And when I went there, it was destroyed by making a road widening. It was finished. Just I wanted to. Which area, sir? That is great boundary in Rajasthan. Swai Madhavpur. Rajasthan has around 10 national geological monuments. Yes. Luckily, I have seen almost all. This was lost. No, but Great Boundary Fault is evidence of Great Boundary Fault is seen all along. There is not only one place where it has been destroyed in one place. Sir, you are right. I fully agree. I fully agree. Where the board was put, where the local people know that this area was declared. This had it had very special characters. Of course, there are nearby. There may be other areas. So we have to now put some new board in areas instead of that. That area has gone. I went officially to check it once when I was in GST. Okay, thank you, sir. Thank you. And we'll probably wrap it up. We'll profusely thank all of us. Join me in thanking Dr. Ahluwalia for his brilliant talk. And hopefully some action will start. Thank you.